Hello students, instantaneous velocity and speed. The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval but does not tell us how fast it moves at different instants of time during that interval. For this, we define instantaneous velocity or simply velocity v at an instant t. The velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval del t becomes infinitesimally more small. In other words, v is equal to limit delta x by delta t tends to 0 is equal to dx dt, where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of the equation, this means this equation, is the differential coefficient of x with respect to t. मतलब differential coefficient of x with respect to t is denoted by dx dt. So इसका मतलब लिमिट डेल्टा x by delta t tends to 0 मतलब dx dt differential coefficient of x with respect to t is denoted by dx dt. It is the rate of change of position with respect to time at that instant. So मेनली जो एवरेज वेलोसिटी वो है इन कुछ फॉर ए गिवन ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो होता है at different instants, okay, during that time interval for particular time, suppose, okay, for this instantaneous velocity or simply velocity at an instant at any particular time, और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो एक ओवर ए टाइम इंटरवल. यहाँ पे वो टाइम इंटरवल नहीं होता. सपोज टी का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है, टी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, ऐसे होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है. ओके, we can use equation for obtaining the value of velocity at an instant either graphically or numerically. Okay, so ये जो इक्वेशन है, ये हम इसका जो इक्वेशन ये ऑब्टेन करने के लिए कैसे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. We can use equation for obtaining the value of velocity at an instant. Value of velocity at any instant either graphically या numerically इसको निकाल सकते. कैसे? Suppose that we want to obtain graphically the value of velocity at time t equal to 4 second point P. Okay, for the motion of the car represented in a figure mentioned earlier. Okay, so suppose इस फिगर जो पहले डिस्कस किया गया था, जो एक कार है जिसका इनिशियली स्पीड इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं. इस रेंज तक, यहाँ तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाता है. ओके, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है. तो इस रेंज पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या इसका
ये है वो हम निकालेंगे। सो ये है 2 उसी ग्राफ से लिया गया। ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब ये कार्व जो है, कार्व का जो पॉइंट P है, ये एक पॉइंट है, P पॉइंट है, इसमें जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। तो T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इस टाइम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट है इस ये ग्राफ के ऊपर। ओके, सो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, टी इक्वल टू एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, उसमें वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं ग्राफिकली। सो that we want to obtain graphically the value of velocity at time t equal to 4 second, point P. Okay, for the motion of the car represented in a figure mentioned earlier. I have shown that figure. The figure has been redrawn again, choosing different scales to facilitate the calculation. Okay, let us take delta t is equal to 2 second centered at t equal to 4 second. So suppose पहले हम लेते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो डेल्टा टी ये टाइम इंटरवल हो गया है। तो सपोज ये पी है 4 सेकेंड, तो इसके 1 सेकेंड इस तरफ, 1 सेकेंड राइट इस तरफ। ओके, सो सपोज ये जो डेल्टा टी है वो वैल्यू लेते हैं 2 सेकेंड्स, तो ये होगा 3 to 5 सेकेंड्स। ओके, 3 to 5 सेकेंड्स ये रेंज है। तो ये जो टी है, टी मतलब ये जो 3 सेकेंड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है P1 इस कार्व के ऊपर, और ये जो 5 सेकेंड्स है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है P2। सो ये टाइम इंटरवल है इतना। ओके, सो then by the definition of the average velocity, the slope of the line P1 P2 gives the value of average velocity over the time interval 3 seconds to 5 seconds। अभी ये दो पॉइंट P1 और P2 हम कनेक्ट कर देंगे तो ये P1 P2 में लाइन मिल जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही होगा इस टाइम इंटरवल पे एवरेज वेलोसिटी, मतलब 3 to 5 seconds। नाउ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल टी फ्रॉम 2 seconds to 1 seconds। अभी वो जो टाइम इंटरवल वो हम घटाएंगे। ओके, ये अभी इसके तरफ हाफ सेकेंड, इसके तरफ हाफ सेकेंड, तो ये आएगा 3.5 to 4.5 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। ओके, पहले था 3 to 5, तो ये टाइम इंटरवल हो गया 2 सेकेंड्स। अभी होगा 3.5 to 4.5, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 3.5 का पॉइंट है यहाँ पे इस कार्व के ऊपर Q1, और इसका है इस 4.5 का है Q2। तो ये Q1 और Q2 हम अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Q1 Q2 जो लाइन है। सो ये लाइन का जो स्लोप है यही होगा इस पॉइंट में, इस ये जो लाइन का स्लोप है इस 1 सेकेंड इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी। सो देन द लाइन P1 P2 बिकम्स Q1 Q2। अभी इसमें टाइम इंटरवल होगा 1 सेकेंड एंड इट्स स्लोप्स गिव्स द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 3.5 सेकेंड टू 4.5 सेकेंड। इन दिस लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अभी ये टाइम इंटरवल और अगर हम कम कर दे, मतलब ये ऑलमोस्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल टेंस टू 0, तो तब क्या होगा अगर हम और भी छोटा करते जाए तो लाइन P1 P2 बिकम्स टेंजेंट। अभी अगर हम और छोटा कर देंगे तो अल्टीमेटली ये पॉइंट ही रहेगा। तो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट टेंस टू 0। सो ये है एक पॉइंट इस कार्व के ऊपर। ओके, ये जो कार्व है ये कार्व के ऊपर एक पॉइंट है P। सो P पॉइंट में जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही होगा P पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी। सो द लाइन P1 P2 becomes tangent to the position टाइम कार्व एट पॉइंट P। ओके, ये टेंजेंट है इस P पॉइंट में एंड द वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अभी ये क्या है, अभी
टाइम इंटरवल तो डेल टी ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, तो अभी ये इसमें क्या होगा, टी का जो वैल्यू, ये टी का वैल्यू होगा 4 सेकेंड, क्योंकि अभी टाइम इंटरवल तो है नहीं, तो ये एक्चुअली टी एट 4, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, सो टी एट 4। ओके, सो ये टी एट 4 पॉइंट है ये, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ओके, वही होगा वेलोसिटी। सो the curve at point P and the velocity at t is equal to 4 second is given by the slope of the tangent at that point. So अभी इस tangent का तो slope होगा, वही velocity होगा इस point पे, और इस point पे delta t tends to 0, मतलब ये t is equal to 4 second। ओके, सो इस tangent का अगर हम स्लोप निकालेंगे, सो हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगा एट टी इज इक्वल टू 4। सो ये ग्राफिकली ऐसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो अभी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो द प्रोसेस ग्राफिकली, बट इट इफ़ वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड, तो ग्राफिकली ये शो करना हर टाइम इजी नहीं है, तो अगर हम न्यूमेरिकल मेथड फॉलो करते हैं, इफ़ यू use the numerical method to obtain the value of the velocity, the meaning of the limiting process becomes clear। जैसे न्यूमेरिकल मेथड में कैसे होता है, फॉर द ग्राफ शोन इन फिगर, तो इस ये ग्राफ को अगर हम न्यूमेरिकली लेंगे, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्चुअली हो जाएगा ये, ओके, इस ग्राफ को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x इक्वल टू 0.08 टी टू द पावर क्यूब। Table gives the value of the delta x by delta t calculated for delta t equal to 2 seconds, 1 seconds, 0.5 seconds, 0.1 seconds and 0.01 seconds centered at t equal to 4। okay, the second and the, सो ये डेल्टा टी का जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हम ले सकते हैं। सो ये जैसे हमने अभी दिखाया, जब टी इक्वल टू 4 सेकेंड को सेंटर में रख के उसके दोनों साइड में टाइम इंटरवल हम लेंगे। सो t1 है 3 सेकेंड्स और t2 है 5 सेकेंड्स, जैसे टी यहाँ पे दिखाया गया। अभी इसको सेंटर करके इसके दोनों साइड में लेंगे, तो इधर अगर टी डेल्टा टी 2 सेकेंड्स है तो हम 3 से 5 सेकेंड तक लेंगे। ओके, t1 है 3 सेकेंड्स, t2 है 5 सेकेंड्स, अगर 1 सेकेंड टाइम इंटरवल है तो 3.5 टू 4.5। ओके, सो ये हो जाएगा, टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड्स, तो t1 होगा 3 और t2 होगा 5। फिर अगर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड्स, t1 होगा 3.5, t2 होगा 4.5। ओके, अगर टाइम इंटरवल है 0.5 सेकेंड्स, तो ये होगा 3.75 टू 4.5, क्योंकि ये 4 जो t इक्वल टू 4 सेकेंड उसके वो है, उसको सेंटर में रख के उसके दोनों साइड से t1 और t2 लिया गया है। सो 0.1 होगा तो 3.95 और 4.05, अगर 0.01 हुआ तो 3.995, 4.005। ओके, सो इसी तरह हम कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, अगर t1 मतलब t3 सेकेंड्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, t2 मतलब 5 सेकेंड में एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही 3.5 में ये हो जाएगा, तो इसी तरह हमें एक्स एट t1 और एक्स एट t2 मिल जाएगा। सो डेल एक्स होगा, डेल्टा एक्स होगा ये एक्स एट t1 t2 माइनस एक्स एट t1। ओके, ये इसको इससे माइनस करेंगे तो 7.4 मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, सो डेल्टा एक्स है 7.84 और डेल्टा टी है 2। ओके, सो 7.84 डिवाइडेड बाई 2, तो वो मिल जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसी तरह हमें सारा वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली जब होगा टाइम इंटरवल 0.01, सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा 3.8400। ओके, सो the second and the third columns gives the value of t1 and t2। सो ये डिस्कस किया, t1 and t2 मिल गया। ओके, and the fourth and the fifth column gives the corresponding values of x
यहाँ पे एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग ये T1 T2 में मिल जाएगा, और द लास्ट कॉलम इज द रेशियो ऑफ एक्स डेल्टा एक्स बाय एंड डेल्टा टी, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम। ओके, सो ये हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। वी सी फ्रॉम द टेबल दैट एज वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, सो जितना हम ऊपर से इसे नीचे गया ये डेल्टा टी का वैल्यू डिक्रीज होता गया। ओके, सो ये सबसे कम लो डेल्टा टी का वैल्यू है। एज वी डिक्रीज द डेल्टा टी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 0.01 सेकेंड्स, ये 0.01 सेकेंड्स, the value of the average velocity approaches the limiting value of 3.84। so अभी जब ये हो गया 0.01 तब एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 3.8400। so which is the value of the velocity at t is equal to 4.0 second, that is the value of dx dt at t.4 second। okay, so which is the value of the velocity at t is equal to 4 seconds। तो ये जितना टाइम इंटरवल हम छोटा छोटा करते गए, ओके, तो ये उतना हमें और मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिलता गया। द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 3.84 व्हिच इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टी, क्योंकि ये टी इक्वल टू 4 इसको सेंटर में रखा गया है, इसके दोनों साइड से टाइम लेके ये टाइम इंटरवल लिया गया। तो ये इसमें टाइम इंटरवल सबसे कम है, जैसे जो 0.01 जब टाइम इंटरवल हुआ तब हुआ ये वैल्यू मिला। okay, that is the value of the dx dt at t equal to 4 second। okay, in this manner we can calculate the velocity at each instance for the motion of the car shown in figure। okay, for this the variation of velocity with time is found to be shown as shown। okay, so ये हमें पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स पे, सो हम क्या किए, टाइम इंटरवल को छोटा करते गए तो एक्चुअली पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स पे हमें वेलोसिटी मिल गया। सो फाइनली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो मिला है। ओके, सो अगर हम इस फिगर को पहले जो लिए थे, ये फिगर, इसमें क्या हुआ था, इसमें कार पहले रेस्ट पोजीशन पे सा है, ठीक है, फिर इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, तो अप टू 10 सेकेंड इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। सो उसके बाद इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद 18 सेकेंड्स के बाद इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता गया, फाइनली 20 सेकेंड में इसका वेलोसिटी ये स्टॉप हो गया। ओके, ये और मूव नहीं किया, तो ये एक्चुअली आफ्टर 20 सेकेंड्स। सो इस कर्व में जो डिफरेंट पोजीशन पे जो वेलोसिटी मिला वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा वो उसी से हम अभी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं उस पोजीशन टाइम ग्राफ से। सो फॉर दिस केस द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी उस ग्राफ से विद टाइम इज फाउंड टू बी शोन हियर। तो ये है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, वो पोजीशन टाइम ग्राफ था, उससे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले वेलोसिटी अप टू 10 तक इंक्रीज हुआ, 10 सेकेंड तक, फिर ये यूनिफॉर्म हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फाइनली स्टॉप हो गया। ओके, सो ये है वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर यूनिफॉर्म हुआ, फिर डिक्रीज होता गया। सो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये आप देख सकते हैं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें अभी इस प्रोसेस से ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड से हमें कैसे निकालते हो हमने डिस्कस किया। सुनिए, अगर उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एज ए टाइम प्लॉट करें तो ऐसे होगा, शुरू में
10 सेकेंड्स तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता गया, ओके, इस रेंज पे। फिर ये यूनिफॉर्म हुआ, 10 to 18 सेकेंड्स तक ये यूनिफॉर्म हुआ वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होता गया, ओके, अप टू 20 सेकेंड्स ये वेलोसिटी डिक्रीज होता गया। तो 20 सेकेंड्स में ये वेलोसिटी ये स्टॉप हो गया क्या, सो उसमें और कोई वेलोसिटी नहीं। सो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें मिल गया। The graphical method for the determination of the instantaneous velocity is always not a convenient method. It is easier to calculate the value of velocity at different instants if we have the data of position at different instants or exact expression for the position as a function of time. So graphical calculate करना graphical method से it is not always very convenient method velocity निकालना। so इसके निकालने के लिए डिफरेंट इंस्टेंस में हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए अच्छा तरीका है, अगर हमें एक पोजीशन हमें एक ऐसा डेटा मिले, डेटा ऑफ पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंस और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एज ए पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, वो तो अच्छा है, ओके। सो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, तो ये एग्जाम्पल है कैसे पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो मिल जाएगा, तो हमें इजीली निकाल सकते। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए का वैल्यू 8.5, बी है 2.5, ठीक है। टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। सो इससे हम इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन को, तो हमें एक्स इक्वल टू मिला था ए प्लस बी टी स्क्वायर, ओके, ए प्लस बी टी स्क्वायर, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स डी टी मिल जाएगा। तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2bt, अभी b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू है 2.5, ओके, सो ये हो जाएगा 5 ओके, एट t इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू 0 होगा, एट t का वैल्यू 0 होगा, तो एट t इक्वल टू 2 v होगा 10 और एवरेज वेलोसिटी होगा बिटवीन 4 टू मांगा है 4 to 2 सेकेंड्स, ओके, 2 to 4 सेकेंड्स। सो एट टी इज इक्वल टू 4 ये होगा, टी इज इक्वल टू 4 होगा तो ये 20 हो जाएगा, ओके, टी इक्वल टू 4 होगा तो ये वेलोसिटी का वैल्यू 20 हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू 4 और